اپنی کوئی چیزیں لڑ بھی پڑتے ہیں آپ اسکول میں تھے چھوٹے تھے ٹفن باکس میں آپ نے شیئر کر دیا اپنا سینڈوچ اپنے دوست کے ساتھ رائٹ. تو رف میں سیکنڈ چیز فرینڈلی بڑی امپورٹنٹ. تو میاں بیوی کو آج جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جن بچوں کی لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی یہ یاد رکھے کہ شوہر یا بیوی کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ سب سے امپورٹنٹ. یعنی ریسپیکٹ نہیں فرینڈشپ وتھ ریسپیکٹ. فرینڈشپ ہوتی ہے اور آپ اپنے دوست کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں رسپیکٹ بڑا لازم ہے. ایون دوستوں کے لیے اپنے گھر والوں سے دیکھیں اگر آپ کو بیوی کے ساتھ کوئی شکایت ہے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہے اس کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی اولاد کے سامنے. ماں اپنے بچوں کو ہتھیار بنا کر شوہر کو تنگ نہ کرے کیونکہ شوہر کی جو رسپیکٹ ہے وہ بچوں کی نظروں میں کم ہو جائے گی. ماں اگر رات کو اپنی ساس کی برائی کرتی ہے کمرے میں بیٹھ کے بچے بھی بیٹھے ہیں تو بچوں کی نظر میں جو ان کی دادی کی رسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور تیسرا کیا؟ تیسرا ٹرسٹ. یہ تو موسٹ امپورٹنٹ. اچھا ویسے مجھے نہیں پتا دنیا کا ہماری قوم میں ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اب جو انہوں نے بات کی نا ان کے ہسبینڈ کو پرابلم لگتا ہے مجھے. ہاں یہ شک جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو شکی ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہونا وہ دوسروں پہ شک کرے گا. ٹھیک. جس کو اپنی ذات پر اعتماد ہو اسے شک کرنے کی ضرورت نہیں. کانفیڈنس. تو ایسے لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو مجھے تو رحم آتا ہے ایسے شوہروں پر کہ جو اپنی بیوی پہ بلا وجہ شک کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی ذات میں کوئی کمی ہوتی ہے. دیکھیں آپ میں کمی ہوگی تبھی آپ کو ڈر ہوگا اس کو کوئی لے نہ جائے کوئی اس کو دیکھے نہ کوئی اس سے بات نہ کرے کوئی سے دوستی نہ کرے. اور یعنی کہ ایک اور ٹائپ کے بھی ہسبینڈ ہوتے ہیں اس میں جو تھوڑے بہت دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری بیوی کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. سیکنڈ آتا ہے فیلنگ آف گلٹ ہوتی ہے. اچھا فیلنگ آف گلٹ. تاکہ جھانکی کرتے رہتے ہیں شادیوں میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے رہتے ہیں اندر احساس جرم تو ہوتا ہے نا. اب ذرا کوئی ان کی بیوی کی طرف دیکھے چاہے ویسی نگاہ پڑی ہو اس کو شک شروع ہو جائے گا. کیوں؟ خود گلٹی ہوتے ہیں جبکہ ان کی بیوی پاک دامن ہے کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے رائٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تین چیزیں ہم نے کی ہے. رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. فرینڈلینس بہت ضروری ہے. تیسرا ٹرسٹ. اگر یہ تین چیزیں آپ کی شادی شدہ رشتے میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو ہمیشہ کامیاب رکھے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے جو رف تھے وہ ہم نے اگزامپل دی تھی ہمارے کالرز کی. کالر جو آیا تھا اس سے پہلے جو ہمارا کالر تھی ان کے حساب سے ہم نے سمجھائی تھی. لیکن اگر فیمیل بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ کر رہی ہیں تو یہی فارمولا سیم اپلائی ہوتا ہے. رسپیکٹ فرینڈشپ اینڈ ٹرسٹ. یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. جن کی بھی شادی اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹوٹ رہی ہے ختم ہو رہی ہے یا وہ مزہ نہیں رہا شادی کے اندر وہ بات نہیں رہی جو شادی سے پہلے تھی یہ فارمولا اپلائی تو کر کے دیکھیں شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں پھر سے ایک جان آ جائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. سنگیتا کراچی سے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور آپ کی کال کے لیے آپ ہماری طرف سے اور ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے ایک واؤچر جیتی ہیں ڈاکٹر موئز کے لیکچر کا جو کل ہو رہا ہے. سو ڈو کم دیر. ٹھیک ہے. تھینک یو. بتائیے کس لیے کال کی؟ یہ ہے کہ میں اکیلے نہیں آ سکتی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنا چاہوں. آپ دو واؤچر لے لیں بس. تھینک یو. اور دوسری بات یہ کہ مجھے جو ڈاکٹر موئز سے مل کر پرسنلی کچھ سوال کرنے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے میری لائف کے بارے میں. اچھا پھر ایک کام کریے گا سنگیتا کل جب آئیں گے نا تو اپنے سوالوں کے پوائنٹس کچھ بنا کے پیپر پہ لے کر آئیے گا. پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو 5-10 منٹس ادھر ملیں گے. بہت رش ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر موئز سے بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے. تھینک یو سو مچ. لو یو. ٹیک کیئر. ہم نے فوراً مسئلہ سالو کر دیا. دیکھا میں فل پرابلم سالور. یس. اب پہلی تو چیز یہ میں نے اسٹارٹ میں جب شروع کیا میں نے پروگرام یہ بتایا تھا کہ ایک دور تھا جب شادی کا کانسیپٹ نہیں تھا تصور نہیں تھا. ٹھیک نا. مردوں نے عورتوں کو پکڑ لیا جنگ کے بعد غلام بنا لیا دشمن کی فوجوں میں سے کسی نے بازار میں سے خرید لی عورتیں. جاہلیت کا دور جو تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑی رحمت کی کرم کیا کہ جی ایک کانسیپٹ شادی کا نکاح کا نبیوں کے ذریعے بھیجا تو معاشروں کے اندر جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہونے لگے ماں سے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جی ایک شخص کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اس کے کیا حقوق ہے. یہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کو آپ اپنا مرد اپنا نام دے گا اس اولاد کا خیال رکھے گا اس کا اولاد کا خیال رکھے گا اس کی تمام حقوق ادا کرے گا. وہ اولاد بڑی ہوگی وہ اس شخص کو جس نے 20-22 سال اس کو پالا اب بڑھاپے میں وہ اولاد اس باپ کا خیال رکھے گی. رائٹ. تو اب یہ بہت ضروری تھا معاشروں کو بہتر بنانے میں اور انسانی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے اور انسانی رشتوں میں تعظیم اور محبت پیدا کرنے کی. یعنی کہ آپ دیکھیں اسلام جیسا مطلب اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ ہم اگین بات تو رشتوں ہی کر رہے ہیں بٹ آپ نے جو بات کی اس سے جو میں نے فیل کیا ہے کہ ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس نے شادی کا کانسیپٹ ڈالا ہی اس لیے کہ اس میں رسپیکٹ بھی ہو
फ्रेंडशिप भी हो और ट्रस्ट भी हो, और आपको पता चले कि दूसरे बंदे के हकूक क्या है, और आपको एक पूरा लाइफ से, और एक पता साइकिल टाइप है कि पहले आपने किसी का ख्याल, पहले तो आपके माँ बाप ने आपका ख्याल रखा, फिर आपने अपने बच्चों का, अपनी बीवी वालिदैन का और अपनी बीवी का ख्याल रखा, वालिदैन के हकूक, बीवी के हकूक और बच्चों के हकूक, और फिर आपके बच्चों ने आपका ख्याल रखा। तो आपके तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ है, बिल्कुल सही, उसको एक कवर करता है। ये पूरा एक, वो कभी वक्त मिलेगा तो मैं एक लाइफ बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लाइफ बोर्ड का कॉन्सेप्ट, और वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कोई कॉल आई है तो बात ले, कॉल है हमारे साथ एक पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा फेवरेट सिटी। कौन बात कर रही है? जी मैं शाकरा बात कर रही हूँ जी, मुझे डॉक्टर मुझ से बात करनी है। काफी अर्से से मैं उनके पहले ARY पे प्रोग्राम्स आते थे, ट्राई करती थी, लेकिन नहीं हो सकती थी बात। अभी मैं ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, किसी प्रोग्राम में मैंने कभी कॉल नहीं की, लेकिन डॉक्टर साहब से बात करनी थी तो मिल गई कॉल। जरूर आइए बात करें। डॉक्टर साहब मैं आपसे अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप अभी जो रेखी की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं जो हूँ, मैं पहले ये 2 साल पहले मैं बीमार हुई थी, कुछ कैंसर था, तो मेरे हस्बैंड मुझे आपकी कोई स्टूडेंट पिंडी में थी तो उसी से सीखे, मतलब रेखी से मेरा थोड़ा उसमें ट्रीटमेंट की थी, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं तो ठीक हो रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के ये मसला है कि उनका यानी अगर उसके जहन में कोई बात बैठ जाती है, अगर यानी कि कोई ऐसी जो उसको पसंद ना हो, और या उसकी जॉब में कोई मसला हो, फिर वो कहते हैं कि जब तक कि मैं यानी बजाय इसके कि वो उस बात को भूल जाए, उसको दिल में रखते हैं और आगे मतलब बढ़ते नहीं है, यानी उसकी जॉब नहीं है तो अब जब तक मेरा पुराना मसला हल नहीं होगा तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। और रात को उनको नींद भी बिल्कुल नहीं आती, नींद का ये मसला है कि वो टैबलेट यूज करते हैं लेकिन कोई भी उसमें असर नहीं होता, नमाज वो नहीं पढ़ते, बाकी उसमें हर एक नेकी है, हर चीज उसमें है सिवाय नमाज के। चले मैं खुद 5 टाइम्स पढ़ती हूँ, मैं उसके लिए दुआएं करती हूँ, लेकिन वो तब पढ़ते हैं जब मैं कब कहूँ कि प्लीज आप नमाज पढ़ें। और मैं काफी अच्छे से मैंने पहले दिन को कहा था कि जब तक आप डिप्रेशन से निकलेंगे नहीं तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये शाकरा हम इस बात को डिस्कस करते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम रह गया, बट हम आपकी बात को डिस्कस करें। बेटर ये है कि आप डॉक्टर मुझे इसको डिटेल ईमेल कर दें, ईमेल नहीं कर सकती तो उनको खत लिख दें तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। और आपको हम डीप रिलैक्सेशन की सीडी डॉक्टर मोइज बड़े नींद के लिए आपके हस्बैंड को हम डीप रिलैक्सेशन की सीडी भिजवा देते हैं हेल्थ टीवी की तरफ से, लेकिन अगर आपके हस्बैंड वो सीडी नहीं सुन सकते, आप नहीं सुनना सकती तो आपको कोई यूज नहीं, आप खुद ही सुन लीजिएगा उसको। अच्छा तुमने बड़ा खूबसूरत, माशाल्लाह तुम इतनी बड़ी हो गई, अब तुमने फौरन पकड़ लिया, सुई अटक जाती है। हाँ। इसके साथ एक सिचुएशन होती है, ही कांट लेट गो, फॉरगो नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, तो दैट कंटिन्यूसली प्लेज इन हिज माइंड और उसका वो बिहेवियर चेंज होता है, राइट। अच्छा इन्होंने कहा इनसे कैंसर में बड़ा फायदा हुआ है, रेकी से कैंसर में फायदा, रेकी में से यार आप वही हमारी बात हुई थी कीमोथेरेपी के बाद आपके बाल लोगों के जो गिरते थे उस लिहाज से उसमें बड़ा शायद फोन करना चाह रहे थे एक दिन, जो हमने वो कराची आए थे, एक बहुत मशहूर स्कूल के ओनर के फादर का जो ट्रीटमेंट हुआ था, और मुझे हैरत है, खुदा गवाए सेकंड मरतबा उसको जब कैंसर हुआ तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो वो उसने बताया था कि जब पहली दफा कीमोथेरेपी हुई थी तो कीमोथेरेपी के कई दिन के बाद बिस्तर से उठ नहीं सकते। हाँ, मुझे याद है। एंड दैट डे कीमोथेरेपी कराने के बाद ही केम टू पीसी, ही स्टूड अप ऑन द स्टेज और कहा अभी मैं कीमोथेरेपी करा के आया हूँ, राइट। एंड माशाल्लाह फाइन। आज का शो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, हमने रिलेशनशिप से बात की, बड़ी सारी हमने आपको डिटेल में समझा रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप का बेसिकली मतलब कि हम तो रिश्तों को बड़ी आम सी चीज समझते हैं, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस आपके रिश्तों की वजह से ही है। तो रिस्पेक्ट करें उनसे फ्रेंडशिप करें, अपने रिलेशनशिप से उन पे ट्रस्ट के साथ रहने के साथ ये रफ का फॉर्मूला अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी में आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल एंड डॉक्टर मोइज इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जिन लोगों ने हमारा वाउचर जीता है प्लीज डू कम टुमारो, कल हमारा लेक्चर होगा शाम 7 बजे एंड वी विल गोइंग टू सी यू देयर। कोई डॉक्टर मोइज से आपको सवाल पूछना है तो अपना सवाल लिख कर आइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ओवर टू यू। 7 बजे आप आगे बैठ जाइएगा, 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे। हाँ जल्दी, आधे घंटे पहले। हाँ मतलब अच्छी बात है, लोग कहेंगे आपने 7 बजे का, ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, आप करेंगे। अच्छा जी, पहली तो बात ये कि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये हस्बैंड वाइफ वाला टॉपिक है ना, मैं इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारी बातें मुझे करनी है, और जुमेरात को मैं इसको मजीद आगे लेके चलूंगा। ये बहुत इसलिए है कि जिस घर में मियाँ बीवी होते हैं उस घर की जो औलाद है वो इस मुल्क का भी मुस्तकबिल है, इंसानियत का भी मुस्तकबिल है।
खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़े हो, झगड़े हो, बदतमीजी हो, डिसरिस्पेक्ट हो, तो औलाद पर उसका बहुत बुरा असर होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूं। और ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक शख्स जिसकी शादी हुए कुछ साल हुए थे, उसका एक छोटा सा बेटा था 2.5 साल का। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, बिकॉज मुझे किसी और से मोहब्बत होगी और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं। बीवी ने कहा ठीक है, कुछ नहीं कहा, बस कहा ठीक है, एक काम करो, हमारे बच्चा जो ना अभी वो मॉन्टेसरी में दाखिल हुआ है, उसका इम्तिहान हो रहा है, तो 1 महीने के बाद इम्तिहान कंप्लीट होगा, तुम 1 महीने के बाद तलाक दे देना। अभी तुम दोगे तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। शौहर ने कहा ठीक है, 1 महीने बाद। उसने दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा कि देखो मेरी बीवी राजी हो गई है और मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूं डिवोर्स के और 1 महीने बाद उसको तलाक दे दूंगा। दोनों फोन पे बड़ी हंसमुख अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बीवी ने एक शर्त रखी, उसने शर्त ये रखी कि 1 महीने के बाद तो मुझे तलाक देना, लेकिन शर्त यह है कि इस 1 महीने के दौरान रोज सुबह तुम वो काम करोगे जो कई सालों पहले तुमने शुरू किया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो 2 महीने तक क्या करते, रोज सुबह जब तुम ऑफिस जा रहे होते तो तुम मुझे अपनी गोद में उठाते, दरवाजे तक लाते और फिर तुम ऑफिस जाते, और मुझे इतनी खुशी होती कि मेरे शौहर ने मुझे अपने हाथों में अपनी बाहों में उठाया। तो तुम 1 महीने तक रोज ऑफिस जाने से पहले मुझे अपने हाथों में उठाकर दरवाजे तक लाओगे, उसके बाद तुम ऑफिस चले जाओगे। शौहर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, मैं कर लूंगा। खैर जी, सुबह हुई, उसने बीवी को हाथ में उठाया, दरवाजे तक लेके आया, रखा और फिर ऑफिस चला गया। 2-3 दिन के बाद उसने देखा कि उसका बेटा जो था स्कूल जरा लेट हो गया था उसको, तो उसने अपने वालिद को देखा, अपने बाबा को देखा, अपनी मां को उठाए हुए और दरवाजे पे छोड़ते हुए। बेटे ने सोचा मेरे मां बाप के दरमियान कितनी मोहब्बत है, मेरा बाप कितनी मोहब्बत करता है मेरी मां से। थोड़े दिन बाद ये होने लगा कि उसको एहसास हुआ कि उसके दिल में उसकी बीवी की मोहब्बत अभी भी है और अभी भी उसको वो बीवी याद आने लगती है जब वो उसको उठाता है, और वो दिन याद आने लगते हैं जब शादी के नए नए दिनों में उसने अपनी बीवी को उठाया था। 1 महीना जब करीब हुआ तो आखिरी दिन उसने अपनी बीवी को उठाया, दफ्तर चला गया। दफ्तर जाने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, मुझे आज एहसास हुआ कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, हमेशा ये मेरे अंदर था, पता नहीं क्या जिम्मेदारियों में मैं उलझ गया। उसने एक बहुत खूबसूरत फ्लावर का बुके लिया, एक कार्ड लिखा उसके ऊपर, वो कहा कि मुझे आज याद आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, आज के बाद हमेशा मैं तुम्हें रोज सुबह अपनी बाहों में उठाकर ऑफिस जाने से पहले दरवाजे तक लाऊंगा। घर पहुंचा खुशी खुशी हाथ में बुके लेकर, पुलिस खड़ी थी, बड़ा हैरान हुआ क्या हुआ, एम्बुलेंस भी थी, पता चला जी आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया। ये बड़ा हैरान, उसके हाथ से बुके गिर गया, क्या हुआ? तो एक डॉक्टर खड़ा था जो उसका दोस्त भी था, उसने कहा मैंने तुम्हें बताया नहीं, 1 महीने पहले मैंने डायग्नोज किया था तुम्हारी बीवी को कैंसर था और उसके पास सिर्फ 1 महीना था जीने के लिए। सुबह ये गया, जब उसकी तदफीन हुई उसकी कब्र पे उसने वो फ्लावर का बुके रखा और उसके बाद उसने बीवी से जो मर चुकी थी उसकी कब्र पे खड़े होकर उसने ऐद किया कि सारी जिंदगी मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई थी, तुम दुनिया से चली गई, मगर आज भी मैं अपने जहन में तुम्हें रोज अपने बाहों में उठाकर फिर ऑफिस जाया करूंगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार हमारे मुल्क में इन शादीशुदा जोड़ों के दरमियान इतनी ही मोहब्बत रखे, इन मोहब्बत की वजह से हमारे अतराफ में माहौल में ये मोहब्बत और प्यार फैले। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे और ये तौफीक दे के खुशियां आप दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।